لوگوں میں ایک بہت تشویش پائی جاتی ہے رٹھوا اور یہاں برج کے حوالے سے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں کے لوگوں کو بھی اور آپ کی وساطت سے ماجد صاحب میں ان لوگوں کو بھی. ہلو السلام علیکم، کیا حال ہے ہمارے بھن برا؟ سارے ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید کرنے ہیں سارے ٹھیک ٹھاک ہو. سو تو یہ تو کو اج اساں بنگڑیلے رونق لگی ہے تھوڑی جی. تو یہ ہے کہ بنگڑیلے بنگڑیلے نہیں رونق خان ماجد خان صاحب جڑے پلواڑی نے رہائشی تو لاٹ مہر بنی تو آئے ایک باری پھر انگلینڈ تو انہوں واسطے نکا جہا فنکشن رکھا گیا تو یہ انہوں واسطے ایک ریلی کڈی سنے ایک فنکشن رکھا گیا ہے تو وہ میں تساں کی دسنا وا ہوں. تکو جی انہوں واسطے استقبال کیتا گیا ہے. تکو جی انہوں واسطے استقبال کیتا گیا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. راجہ نوید اختر گوگا صاحب چیئرمین ضلع کونسل ضلع میرپور فخر کری شریف میں آپ سے ملتمس ہو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب عزت امام راجہ نوید اختر گوگا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل ہمارے میرپور کی پہچان فخر آزاد کشمیر جناب راجہ نجابت صاحب، آج کے مہمان خصوصی لارڈ میئر، یہ بھی ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ اسٹروک اینڈ ٹرینٹ کے لارڈ میئر منتخب ہوئے. حاجی ماجد خان صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے، میرے قابل احترام بھائی. میرے پاس وقت تو بہت کم تھا، میں نے ایک فوتگی پہ پہنچنا تھا، میں نے اپنے کپڑے بھی چینج کرنے تھے، لیکن کیونکہ یہ میرا آبائی حلقہ ہے، میں بھی اسی یونین کونسل کا ہوں. جب میں یہاں آتا ہوں تو میں ایک اپنیت سی محسوس کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے گھر کھڑا ہوں. سٹیج پہ بیٹھے ہوئے اسپیشل ایڈوائزر جناب کرنل معروف صاحب، سابق ممبر ضلع کونسل، سابق صدر حاجی ذوالفقار صاحب، جناب صدر مسلم لیگ ضلع میرپور جاوید قادر صاحب، ممبران ضلع کونسل توقیر نجیب صاحب، حاجی مسعود صاحب، چیئرمین ادریس صاحب، وائس چیئرمین ابرار صاحب، جو وہ رہ کے انہوں نے محنت کر کے آج برطانیہ کے اندر آپ نے جو ہے وہ ہر شعبہ زندگی میں آپ کونسلر دیکھیں، آپ میئر دیکھیں، لارڈ میئر دیکھیں اور ہاؤس آف کامنز میں ممبر آف پارلیمنٹ دیکھیں تو ضلع میرپور کے لوگ سب سے زیادہ آپ کو ملیں گے. انیس رضا صاحب چیئرمین میونسپل کارپوریشن اسلام گڑھ، آپ سے ملتمس ہو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب عزت امام انیس رضا صاحب چیئرمین میونسپل کارپوریشن اسلام گڑھ. یہاں پر گاڑیاں بھی چلتی ہیں، مارکیٹیں بھی بنی ہیں. یہ ان لوگوں نے دن رات محنت کر کے وہاں پر جو کیا تو اس لیے ہماری سارا کچھ چل رہا ہے. میں جس زندگی کا یہ جو ٹوٹل سے بیان ہے یہ تقریباً 70-75 سال ہوتا بندہ زندہ رہتا. اتنی جو محنت کرتے ہیں ہم جو ہے نا، بہت سے ذہین لوگ ہیں، خوبصورت ترین لوگ بھی ہیں، سب لوگ ہیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہوتا ہے. یہ اس کے بعد تو اس کا عاجز تسلیم کر پیش کرتا ہوں. علاقے میں آمد پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. باقی دوستوں کو بھی بہت شکریہ. تھینک یو. مسلم لیگ نواز ضلع میرپور جناب عزت امام چودھری جاوید قادر صاحب، آپ سے ملتمس ہو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب عزت امام چودھری جاوید قادر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
आज की तकरीब के मेज़बान मेरे बड़े भाई राजा निजावत साहब, अल्लाह ने आपको मज़ीद इज़्ज़त दे और मज़ीद वहाँ की लोगों की खिदमत करने की तौफीक अता करे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। बहुत शुक्रिया जनाब इज़्ज़त माब मेरे बड़े भाई हर दिल अली शख्सियत चौधरी जवेद कादर साहिब, सदर मुस्लिम लीग नवाज ज़िला मीरपुर। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफिल राजा निजावत साहब, मेहमान ख़ुसूसी मेरा शो कंटेंट माजिद साहब, स्टेज बैठे हुए मेरे बुजुर्ग हाजी जुल्फ़िकार साहब, डिस्ट्रिक्ट कौंसल तोकीब नजीब साहब, राजा गुलाम हैदर साहब और मेरे बड़े भाई राय शौकत साहब, अनीस रज़ा साहब, भाई जाहिद साहब, डिस्ट्रिक्ट कौंसल मसूद साहब, मेरे सामने जितने मेरे उस्ताद मोहतरम तारक साहब, जितने जुमला लोग, अस्सलाम वालेकुम। तकरीब तो क्या करनी है, आज का दिन जो है मेहमान ख़ुसूसी और सदर महफिल के लिए आप लोगों ने जिस अंदाज से इनका इस्तकबाल किया, आज के दौर में हर बंदा इतना मसरूफ़ है कि जैसे मुझसे कबल कोई मुकर्रर ये बात कर रहा था कि तारीख़ी आज़ादी कश्मीर हवाले से राजा निजावत साहब का जो किरदार है वो सब लोगों को पता है। हम राजा निजावत साहब आपको हल्का नंबर 2 बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर ज़िला मीरपुर आपका दिल से लोग एहतराम करते हैं कि आपने सॉरी में कर्नल मारूफ साहब का नाम ले सका था तो वो भी स्टेज बैठे, लेकिन कहने का मकसद ऐसा कि आपकी जो काविशें या कश्मीर की जो मेहनत है या जैसे आप मेहमान नवाजी इंग्लैंड में करते हैं वो क्या कहता ऐसी है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए रहमान साहब आपको वेलकम करते हुए स्टेज जा चाहूँगा। लंबी बात नहीं करूंगा, फिर कभी इंशाल्लाह गिरी तो फिर ये माहौल भी इस टाइप का नहीं है कि मैं किसी और मौजूद बात करूं या सियासी बात करूं। आज का मकसद आपको वेलकम करना था। थैंक यू। आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, मेरी मुराद जनाब इज़्ज़त माब कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ खान साहब, आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब इज़्ज़त माब कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ खान साहब, स्पेशल एडवाइज़र बराए वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, जनाब इज़्ज़त माब कर्नल रिटायर्ड मारूफ खान साहब। आज 25 दिसंबर है और कायद आज़म की विलादत है। वो शख्स जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे, उसने हमें आज़ादी दिलवाई, पाकिस्तान बना वजह, वरना आज भी शायद हम बनिए के जुल्म जबर में पिस रहे होते। तो कायद आज़म को हम सबको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, उनकी वजह से ही सारी अज़मतें सारी रोकते हैं। में एक बहुत तशरीफ पाई जाती है रठवा और यहाँ ब्रिज के हवाले से। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को भी और आपकी वसातत से माजिद साहब, मैं उन लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इस काम पे बहुत ही वार फुटी का काम हो रहा है। लंबा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। पहले ठेकेदार है उसे जांच लाना, फिर इस जो स्ट्रक्चर है इसकी एक टेक्निकल एनालिसिस होता है वो हो रहा है। फिर कुछ कवानीन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन कवानीन में तरामीम कर दी गई हैं। अभी वो आज या कल वो काबीना से भी अप्रूवल उसकी होनी थी और उस बाद बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि FW को ये काम मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी 2-3 दफा कहा था कि दिसंबर के अवाखिर या जनवरी के अवाइल में ये काम शुरू होगा और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से ये पाया तकमील तक भी पहुंचेगा। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इस बात का कमिटेड है कि इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाना है और इससे मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा फायदा जो है वो हल्का नंबर 2 को और उससे भी ज्यादा इस्लाम गार्ड
को है इस्लाम गढ़, क्योंकि तो इस्लाम गढ़ जो फिर मीरपुर का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत की जो डायरेक्शन है वो सही है। इसमें देर सवेर हो सकती है किसी काम में, लेकिन जो विजन है, जो सोच है, काम करने की जो सम्मत है, वो सही है। और इंशाल्लाह आपको इस तरह की चीजें, इस तरह की अचीवमेंट्स आपको होती हुई नजर आएगी। बातें तो बेशुमार और भी हैं, हुकूमती सतह पे हो रही हैं और उनका जवाब भी है, लेकिन ये चूंकि आज ये फोरम या आज का ये जो वज़म है ये सिलसिला में नहीं है, तो मैं ये 2-3 बातें गोशगवार आपको करना चाहता था। आखिर में आप सब लोगों का शुक्रिया, हम सब लोग माजी साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं, इन सब लोगों के भी आप, और जनाब उनके लिए दुआ गए, राय साहब के लिए भी, माजी साहब के लिए भी। अपने ख्याल का इज़हार करते हैं जनाब इज़्ज़त राजा नजाबत खान साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑनरेबल लॉर्ड मेयर ऑफ स्टोक ऑन ट्रेंट, मेरे भाई माजिद खान साहब, इस महफिल में जो रौनक खान अमजद खान ने लगाई है, और फिर आप सारे लोगों ने यहाँ हमारे लॉर्ड मेयर साहब का आकर इस्तकबाल किया है, आपका हाजी राजा माजिद खान साहिब, नौ मुंतखब लॉर्ड मेयर स्टॉक बरतानिया, आप तशरीफ लाते हैं और अपने ख्याल का इज़हार करते हैं जनाब इज़्ज़त हाजी राजा माजिद खान साहिब। जनाब नहायत ही काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी मेरे बुजुर्ग दोस्त स्टेज पे बैठे हैं, मैं सुकून से शुरू करता हूँ। जिनके नाम मुझे याद हैं वो तो मैं ले लूँगा, जिनके नहीं है उनसे माजरत एडवांस में। तो नवीद भट्ट साहब मीरपुर से तशरीफ लाए, राजा जमान साहब मेरे बहुत बड़े बुजुर्ग और हमदर्द हैं, काफ़ी अरसे से इनकी शफकत है हम पर। आगे जो बुजुर्ग बैठे हैं सारी आपका नाम मुझे नहीं मालूम, नजीब तोकीर साहब हैं, जुल्फ़कार साहब हैं कनेली से, आजी जुल्फ़कार साहब हैं हमारे बुजुर्ग कोठा टाउन से, और राजा गुलाम हैदर साहब कूड़ा से तशरीफ लाए। राजा नजाबत को तो आप सब लोग जानते हैं, इनकी तो तारफ करवाने का किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी कारकर्दगी में मैं बाद में आता हूँ। फिर हमारे हादिल अजीज़ कर्नल मारूफ साहब जो कि हालिया आज़ाद कश्मीर रियासत के मशीर हैं, वज़ीर आज़म के, और साबिक़ वज़ीर आज़म राजा शौकत साहब, ख़ुसूसी करम है मुझ पर कि मैं ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बरतानिया में 2 बार लॉर्ड मेयर बनने वाला मैं पहला पाकिस्तानी हूँ। और ये सब आप लोगों की दुआओं के नतीजे में हुआ है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि मैंने अपनी जो मेहनत की है, 20 साल से मैं एक्टिव सियासत में वहाँ पे काम कर रहा हूँ। और जिस शहर में मैं रहता हूँ, ये बड़ी मज़े की बात है कि वहाँ पे मेरे इलाके का कोई, मेरी बरादरी, मेरा रिश्तेदार, मेरे एक भाई और भतीजों के अलावा कोई नहीं है। और भाई और राजा नजाबत साहब ने जब भी कभी हमें याद किया कश्मीर के मौजू पे, हम ज़्यादा बात करना तो नहीं चाहते थे, मगर चूँकि बात चली है तो अब कुछ न कुछ कहना पड़ेगा हमें भी, कि पूरे यूके में ये जहाँ के भी प्रोग्राम कश्मीर के लिए अरेंज करते हैं, जब भी इन्होंने आवाज़ दिया तो इंशाल्लाह हम इनके शाना बशाना खड़े हुए। इन्हीं की दावत पे मैं जनाब पाया हूँ। इस बार पे आप पता है, आपको पहले 3 बार जो पिछले टेन्योर में मैंने एज ए डेप्यूटी लॉर्ड मेयर भी दौरे किए थे और एज ए लॉर्ड मेयर भी किए थे। इस बार इन्होंने बिलखसूस इसरार किया जी कि कुछ और लोग भी आ रहे हैं तो तुम भी आओ, चूँकि तुम पहले लॉर्ड मेयर को दूसरी बार बने हो। तो इनकी फरमाइश पे जनाब इनका कहना मैं टाल नहीं सका तो मैं आ गया। तो वंस अगेन जनाब सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी मेहमान स्टेज पे बैठे हैं इन सब का बहुत शुक्रिया, और जितने भी लड़कों ने काम किया वंस अगेन उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।
तो दोस्तों ये सी असन अज निक्का जिहा व्लॉग लास्ट पर बस खाने पीने इंतजाम किया ने थोड़ा जिहा। तो दोस्तों असन चैनल लाजमी सबसक्राइब करो, उस तो बाद शेयर वगैरह करो अपने दोस्तों नाल भैणां भरावां नाल। ते इंशाल्लाह असां मिलने तुसां की नेक्स्ट व्लॉग विच। तुसां की असां ने चैनल विच हर किस्म ना व्लॉग लभसी, सियासत ने वाले ने शुगल मेला सब कुछ लभ्या करसी। इंशाल्लाह मिलने नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।